Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to revision through MCQ discussion series. So we will be revising the concepts of the chapter along with MCQ discussion, and topic for this lecture is P block oxygen family. So let's start with the questions. Before starting, make sure you subscribe to this channel so that you can get more and more videos on MCQs. It will help in revising the topic thoroughly. So in this video, we will be having questions on oxygen group, that is the 16th group of the periodic table, and the various members are oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. And we have to study the general characteristics like electronic configuration and then occurrence, oxidation state, etc. Some physical chemical properties of O2, preparation of O2 and even preparation of ozone, various properties of ozone, oxidizing nature of ozone. After that, sulfur, we have allotropes of sulfur and some compounds of sulfur like sulfur dioxide, like sulfuric acid. Sulfuric acid is a very good dehydrating agent and very good oxidizing agent. And then some oxoacids of sulfur, their structures. All these topics will be revised through these MCQs. So let's start the session with the first question. Question number 1 on the screen. When acidified solution of KMnO4 is dropped over sodium peroxide, the colorless gas produced is. You are given KMnO4 and you are mixing it with sodium peroxide. Then which colorless gas is produced? Options are dinitrogen, dioxygen, dihydrogen और hydrogen peroxide. तो देखो बेटा, केमिकल रिएक्शन लिखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल KMnO4 is mixed with Na2O2. This reaction takes place in presence of sulfuric acid. The product is K2SO4 plus MnSO4 and then sodium sulfate, Na2SO4 plus water and O2 gas is produced. So याद क्या रखना है कि peroxide में से O2 gas liberate होती है. Now we balance the reaction. 2 mole KMnO4, 5 of Na2O2 and there will be need to write 8 here. 8 mole of sulfuric acid. Right side पे आइए, right पे 2 potassium, 2 manganese and you should have 8 sulfate. Total 10 atoms of sodium. So I have written 5 sodium sulfate and 5 mole O2 is produced. So peroxide आपको given था Na2O2 और product आ रहा है O2. KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो Na2O2 में से O2 गैस लिबरेट कराता है. एज अ रिजल्ट हमारा आंसर बनता है डाई ऑक्सीजन विल बी प्रोड्यूस्ड, मीन्स बी ऑप्शन. सो मेथड्स टू प्रिपेयर ऑक्सीजन मेन है इस चैप्टर के अंदर. एक दो मेथड्स और देखो. लेबोरेटरी प्रिपरेशन टू लेबोरेटरी मेथड ऑफ ऑक्सीजन इज वी हीट KClO3, पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हैं. On decomposition, it liberates O2. As a result, 2 mole of KClO3 will give 2 mole KCl and 3 mole of O2. Even some oxides like silver oxide and mercury oxide, they are not stable to heat. Simply on heating, they will decompose and you will get O2 gas. So various methods to prepare oxygen are discussed here. Peroxides will liberate oxygen and some oxides like silver oxide, mercury oxide, etc. they will liberate oxygen simply on heating. So first question was on the preparation of oxygen. Coming to the next, which will quickly absorb oxygen gas? Which will quickly absorb oxygen gas? Let me check. Have we written the answer for the first question? Yeah, it was written B option. So the second question now. Which will quickly absorb oxygen gas? You are given alkaline pyrogalol, concentrated sulfuric acid, lime water और alkaline solution of copper sulfate. So बेटा ये जो pyrogalol होता है ये ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है. pyrogalol स्ट्रक्चर ये है. We have benzene ring and then
3 OH groups attached to it. This is a specific compound. It is an organic compound for absorption of oxygen. Name is pyrogluol. Pyrogluol gets self-oxidized in presence of oxygen. It gets oxidized. So, it absorbs oxygen. तो सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर हम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कराते और कॉपर सल्फेट पे भी नहीं. आंसर है अल्कलाइन पायरोग्लोल. एज अ रिजल्ट आपका आंसर बनता है ए ऑप्शन. स्पेसिफिक कंपाउंड है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन. वी हैव टू लर्न, वी हैव टू कीप इन माइंड. कमिंग टू द नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. थर्ड क्वेश्चन इज टेलिंग ऑफ मर्करी इज ड्यू टू. टेलिंग ऑफ मर्करी क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझने की बात है पहले. टेलिंग ऑफ मर्करी का मीनिंग है बेटा, टेलिंग ऑफ मर्करी मीन्स मर्करी लूजेस इट्स मेनिस्कस. मर्करी लूजेस इट्स मेनिस्कस ऑन रिएक्शन विद ओजोन. मर्करी अगर ओजोन के साथ मिक्स कर दिया जाए तो मर्करी का केमिकल रिएक्शन हो जाता है और क्या बन जाता है, mercurous oxide. You get Hg2O. mercurous oxide is produced, right? तो mercury will now start touching the glass surface. mercury का otherwise convex meniscus होता है. ये ऐसे convex meniscus मतलब mercury glass surface को टच नहीं करता. बट अगर mercury का रिएक्शन हो गया, mercury तो अब बचा ही नहीं, बन के आ गया Hg2O. now it will start sticking to the glass surface. Hg2O जो बन चुका है, it sticks to the glass surface. It sticks to the glass surface and it leaves a tail behind it. ऐसे लगता है कि ये टेल छोड़ के आगे जा रहा है. तो इस कॉन्सेप्ट को टेलिंग ऑफ मर्करी बोला जाता है. और टेलिंग ऑफ मर्करी किस कंपाउंड की वजह से होता है, हमारा क्वेश्चन ये है. हमारे पास ऑप्शंस देखो क्या क्या हैं. Hg2O, HgO एंड मर्करी हाइड्रोक्साइड, मर्करी क्लोराइड. आंसर है बेटा ए ऑप्शन. Hg2O की वजह से टेलिंग ऑफ मर्करी होता है. कैसे रिएक्शन होना है, मर्करी का ओजोन के साथ रिएक्शन होता है. रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट. मर्करी विल रिएक्ट विद ओजोन एंड ओजोन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. वो मर्करी को ऑक्सीडाइज करके मर्क्यूरस ऑक्साइड बना देगी. तो आपका आंसर बनता है ए ऑप्शन. गॉट इट. कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 4. In which of the following O2 gas is collected? ऑक्सीजन गैस को जब कभी ऑक्सीजन गैस प्रिपेयर करते हैं तो उसको इथेनॉल पे कलेक्ट करते हैं, या वाटर के ऊपर, या मर्करी के ऊपर, या पायरोग्लोल के ऊपर. यू आर गिवन 4 ऑप्शंस. तो बेटा जैसे KClO3 डीकम्पोजिशन से हम O2 बना रहे हैं, ये रिएक्शन होता है ना KClO3. इफ इट डीकम्पोजेस इट गिव्स KCl plus O2. ये लेबोरेटरी मेथड है. तो जो ऑक्सीजन बनेगी उसको कलेक्ट कैसे करेंगे, हमारा आंसर है उसको वाटर के ऊपर कलेक्ट किया जाता है. ऑक्सीजन वाटर की सरफेस के ऊपर, वाटर का ट्रफ लेके एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रख दी जाती है. तो वाटर की सरफेस के ऊपर O2 कलेक्ट होती है. इथेनॉल से तो O2 का रिएक्शन हो जाएगा. इफ यू आर टेकिंग इथेनॉल, लेट्स से C2H5OH, इथेनॉल तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन जाएगा इफ द सिस्टम इज हीटेड. मर्करी के साथ भी रिएक्शन हो जाएगा. मर्करी और ऑक्सीजन विल कंबाइन टू गिव मर्क्यूरिक ऑक्साइड. पायरोग्लोल तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब ही कर लेगा. हमने ऑक्सीजन को कलेक्ट करना है, सो आंसर आपका बनता है वाटर. वाटर की सरफेस के ऊपर हम इसको कलेक्ट करते हैं. गॉट इट. So your answer becomes B option. Coming to the next question is the correct order of acidic strength is. We are given Cl2O7, क्लोरीन का ऑक्साइड दिया है, सल्फर डाइऑक्साइड दिया है एंड P4O10. Apart from that you are given in B option कार्बन ऑक्साइड एंड देन नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड. ऑल दीज ऑप्शंस आर देयर. तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या मेथड है, कीप इन माइंड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल अक्रॉस अ पीरियड, when we move from left to right, acidic strength increases. Acidic strength of oxides
इंक्रीजेज। हमारा पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पे मेटल्स हैं। मेटल के बेटा ऑक्साइड्स और मेटल के हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, और राइट साइड पे नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स में सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इनके ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। तो जितना पीरियोडिक टेबल की राइट साइड पे आप होगे उतना एसिडिटी ज्यादा होगी। एज ए रिजल्ट मैक्सिमम एसिडिक कौन सा कंपाउंड हुआ? Cl2O7। Cl2O7 मतलब 17th ग्रुप हेलोजन फैमिली का है, सल्फर 16th ग्रुप का है ऑक्सीजन फैमिली का, P4O10 बिलोंग्स टू नाइट्रोजन ग्रुप 15th ग्रुप। एज अ रिजल्ट 17th ग्रुप जो हेलोजन है वो मोस्ट एसिडिक, फिर आएगा सल्फर का, फिर आएगा फॉस्फोरस का। आपका आंसर बनता है ए ऑप्शन। तो एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड्स के ऊपर हमारा क्वेश्चन था। जैसे कि सी ऑप्शन में तो मेटल्स दे रखी हैं, सोडियम ऑक्साइड इज मोर देन मैग्नीशियम देन एल्यूमिनियम। ये एसिडिटी नहीं बेटा, ये बेसिसिटी का ऑर्डर है। कीप इन माइंड लेफ्ट साइड पे अल्कली मेटल्स जो हैं उनके कंपाउंड मैक्सिमम बेसिक होते हैं। बट हमारे क्वेश्चन ने बेसिसिटी तो नहीं पूछा था ना, हमें तो एसिडिटी पूछा था। एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर हमें कमेंट करना था, तो आपका आंसर बनता है ए ऑप्शन। Cl2O7 इज मोस्ट acidic among these oxides. Got it? Coming to the next one. Next question is, which of the following oxides will produce dioxygen on treatment with water? आपको वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है और ये बताना है कि डाइऑक्सीजन किस केस में प्रोड्यूस होती है। KClO3 is given, Na2O2 सोडियम परऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो बेटा ये जो Na2O2 ये जो परऑक्साइड है ना, Na2O2 peroxides when treated with water they liberate oxygen. The product will be NaOH plus O2. परऑक्साइड के हाइड्रोलिसिस से O2 गैस लिबरेट होती है, ये बात याद रखनी है। एज अ रिजल्ट हमारा आंसर बनता है बी ऑप्शन। KClO3 से भी ऑक्सीजन बनती है बट उसमें वाटर नहीं ऐड करना पड़ता। डीकम्पोजिशन ऑफ KClO3, डीकम्पोजिशन ऑफ KClO3 लिबरेट्स O2। गॉट इट? तो क्वेश्चन ने बोला था आपको वाटर ऐड करना है, एज ए रिजल्ट आपका फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं है, आंसर है Na2O2। Na2O2 आप डालोगे, वाटर के साथ मिक्स करोगे तो प्रोडक्ट में O2 गैस आएगी। वी कैन बैलेंस द रिएक्शन, यू विल गेट 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 मोल वाटर विल कंबाइन। इन दिस वे आपका रिएक्शन का प्रोडक्ट बन रहा है Na2O2 plus 1 mole water will give 2 mole of NaOH and 2 mole of oxygen. Answer is B option. Clear? So ऑक्साइड्स के ऊपर प्रेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन के हम रिएक्शंस कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन्स ऑक्साइड इन द सीक्वेंस बेसिक, एम्फोटेरिक एंड एसिडिक रिस्पेक्टिवली। पहले आपको बेसिक ढूंढना है, फिर एम्फोटेरिक और फिर एसिडिक। ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं? सल्फर डाइऑक्साइड P2O3, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, देन बेरियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम एंड देन सिलिकॉन, कैल्शियम, देन सिलिकॉन। याद रखो SiO2 को सिलिका कहते हैं, Al2O3 को बेटा एल्यूमिना कहते हैं। एंड डी ऑप्शन में एल्यूमिना दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है और कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है। तो हमारा आंसर पहले बेसिक ढूंढना है, तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड आएंगे एसिडिक। एज अ रिजल्ट बेरियम आंसर बनेगा। बेरियम इज अल्कलाइन अर्थ मेटल, सो बेरियम ऑक्साइड इज बेसिक ऑक्साइड। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, वो एसिड से भी रिएक्ट करता है और वो बेस से भी रिएक्ट करता है। एम्फोटेरिक का मतलब दोनों से रिएक्ट करना। एंड SiO2 इज कॉल्ड सिलिका। सिलिका बेटा एक एसिडिक ऑक्साइड है। तो हमारे को याद क्या रखना है? मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, सॉरी मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स, चाहे ऑक्साइड की बात हो चाहे हाइड्रोक्साइड की बात हो, मेटल के केस में आंसर होता है बेसिक नेचर, और नॉन मेटल के नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक
इन नेचर। कार्बन ग्रुप को बिलोंग करता है ये सिलिकॉन SiO2। सो ये एक एसिडिक ऑक्साइड है। एल्यूमिना एम्फोटेरिक है, एल्यूमिना दोनों के साथ रिएक्ट करता है। Al2O3 HCl से रिएक्ट करेगा तो AlCl3 बन जाएगा, और Al2O3 जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है, दोनों के साथ रिएक्शन होता है। एज अ रिजल्ट आपका आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन में भी मेटल पहले दे रखी थी, कैल्शियम ऑक्साइड भी बेसिक है, बट उसने एल्यूमिना लास्ट में कर दिया, लास्ट में नहीं, रिस्पेक्टिवली लिखा है ना, हमें पहले बेसिक फिर एम्फोटेरिक और फिर एसिडिक देखना है। गॉट इट? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one absorbs ultraviolet radiations in stratosphere? The options are carbon dioxide, N2, ozone and H2। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कौन एब्जॉर्ब करता है? तो क्या आंसर है? ओजोन जो है, ओजोन एब्जॉर्ब्स हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ सन। इट एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस from sun. These radiations are quite harmful for us. They will cause many skin disorders, but ozone is a big help to us. Ozone will absorb these radiations, and ozone, on absorbing these radiations, it gets converted to O2. ओजोन बेटा डिकम्पोज हो जाती है, O2 बन जाता है, एंड नेसेंट ऑक्सीजन भी बन जाती है। ओजोन gets converted to oxygen and nascent oxygen, O2 plus nascent oxygen, and a lot of heat is also released out. So this is quite a big help to us. Otherwise ये डायरेक्ट जो रेडिएशन है अल्ट्रावायलेट सन की रेडिएशन अर्थ पे आएगी, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। तो ओजोन लेयर इज देयर टू हेल्प अस, इट एब्जॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो आपका आंसर क्या बना? सी ऑप्शन। क्लियर? Coming to the next, oxygen and sulfur are alike as both can form covalent compounds with metals. They can exist in diatomic state. They have atoms of same size. They can form covalent hydrides. Question ये है कि ऑक्सीजन और सल्फर का सिमिलर बिहेवियर किस सेंस में आता है? क्या उनके कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं मेटल के साथ दोनों के? क्या दोनों डायटोमिक हैं, या दोनों का एटम का साइज सेम है और दे कैन फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड्स? तो किस तरह आंसर देंगे? पहले ये ऑप्शन को देखते हैं बेटा। मेटल ले लो, समझ लो हमने सोडियम ले लिया, ठीक है। सोडियम का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो Na2O बनता है। इसी तरह सोडियम का सल्फर से रिएक्शन होगा तो Na2S बनेगा, ठीक है। तो सोडियम ऑक्साइड कोवलेंट नहीं है। ऑक्साइड मतलब आयोनिक कंपाउंड। सोडियम ऑक्साइड इज आयोनिक, सोडियम पे +1 चार्ज है और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है। बट सल्फर के कंपाउंड्स कोवलेंट होंगे। आप फैजान रूल पढ़ते हो केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग में आप देखते हो सल्फर कंपाउंड्स विल बी हैविंग मोर कोवलेंट करेक्टर, दे विल हैव मोर शेयरिंग। बिग साइज ऑफ एन आयन मीन्स मोर शेयरिंग मीन्स मोर कोवलेंट करेक्टर। तो ए ऑप्शन तो आंसर नहीं बना। दे कैन फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स, ये गलत है। ऑक्सीजन का मेटल के साथ कंपाउंड कोवलेंट नहीं होगा। क्या ये डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? तो ये भी आंसर गलत है, क्योंकि ऑक्सीजन तो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर तो O2 नहीं होता, सल्फर तो एसिड होता है। सल्फर के अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बन सकते। सल्फर के अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं होते जो कि ऑक्सीजन में होते हैं। ऑक्सीजन में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, तो सल्फर में तो जब एसिड बनेगा ऑल सिंगल बॉन्ड्स ड्यू टू बिग साइज ऑफ सल्फर, ये अपने आप के साथ पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। तो ये भी गलत हो गया। डू दे हैव सेम साइज? एटम्स का साइज क्या सेम है? नो। व्हेन दे आर इन द सेम ग्रुप, एक मेंबर है ऑक्सीजन, एक है सल्फर, फिर सिलीनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। सो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, size increases downwards. As a result, उन दोनों का एटम का साइज भी सेम नहीं है। सल्फर इज बिग इन साइज। दे कैन फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड्स, दैट इज करेक्ट। इनके जो हाइड्राइड्स हैं वो कोवलेंट है। देखो हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन है वाटर, एंड द हाइड्राइड ऑफ सल्फर इज H2S।
एज अ रिजल्ट दोनों कोवलेंट कंपाउंड है। ऑक्सीजन मेटल के साथ आयोनिक बनाता है, बट ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ तो कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा ना, सो कोवलेंट है वाटर भी और H2S भी। एज अ रिजल्ट हमारा आंसर बना डी ऑप्शन, दे कैन फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड्स। क्लियर? लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। Next question is oxide which cannot be a reducing agent is. The options given to us are sulfur dioxide, NO2, carbon dioxide and ClO2. Which cannot be a reducing agent. देखो reducing agent क्या होता है, पहले ये समझने की कोशिश करो। reducing agent, can I say reducing agent itself gets oxidized? Itself it gets oxidized, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट ने दूसरे की रिडक्शन करानी है तो खुद इसको ऑक्सीडाइज होना पड़ता है, तो खुद की ऑक्सीडेशन होनी है। और बेटा ऑक्सीडेशन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, अगर मुझे ऑक्सीडेशन डिफाइन करना है तो ये होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढ लेते हैं हम अपनी सारी ऑप्शंस के। सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर जो सल्फर है वो +4 आएगा। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन +4 आएगा। लेट्स कम टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन हैज +4 चार्ज हियर। I write X for carbon and oxygen carries -2 always. As a result X का वैल्यू आ गया 4, मतलब कार्बन +4 है। अब अगर कार्बन ऑक्सीडाइज होगा खुद तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाएगा, बट कार्बन +4 इज द हाईएस्ट वैल्यू। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 4 से ऊपर नहीं जा सकता, तो कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी एक रेड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है, क्योंकि रेड्यूसिंग एजेंट के लिए फर्दर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अवेलेबल होनी चाहिए। कार्बन की तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ही +4 है। तो कीप इन माइंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड में बेटा कार्बन +2 होता है ना, सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट बट नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में +2 के बाद जब ये रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा तो ये खुद ऑक्सीडाइज होगा, तो इसका नंबर फिर इंक्रीज हो सकता है। ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज आएगा। एज अ रिजल्ट आपको रिड्यूसिंग एजेंट क्वेश्चन ने बोला था विच इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड तो रिड्यूसिंग एजेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड में +4 के बाद फर्दर +6 हो सकता है। नाइट्रोजन के अंदर भी NO2 दिया है, तो NO2 में नाइट्रोजन +4 है, बट जब ये फर्दर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करना होगा तो ये N2O5 बन सकता है, मतलब +5 अवेलेबल है। इसी तरह क्लोरीन यहाँ पे ClO2 में क्लोरीन +4 है, इट कैन गो अप टू +7। गॉट इट? सो कार्बन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट था +4, तो कार्बन कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता, तो तुम्हारा आंसर बनता है C option, carbon cannot be a reducing agent. Got it? Next question, question number 11. Which form of sulfur is amorphous? सल्फर का एमॉर्फस फॉर्म कौन है? सल्फर के कई एलोट्रॉप्स हमें दिए, कौन कौन से? रोहम्बिक सल्फर, देन वी आर गिवन प्लास्टिक सल्फर, मिल्क ऑफ सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। आपको ये बताना है कि एमॉर्फस है क्या कोई। देखो पहले हेल्प लेते हैं, ये नोट को पढ़ते हैं। सल्फर एलोट्रॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस में। रोहम्बिक सल्फर फर्स्ट नंबर पे, इसको बेटा अल्फा सल्फर कहते हैं। मोनोक्लिनिक सल्फर को बीटा सल्फर बोला जाता है, और फिर तीसरा एलोट्रॉप है प्लास्टिक सल्फर। ठीक है, तो रोहम्बिक सल्फर येलो कलर का है, एंड मोस्टली सल्फर, ये जो कोई भी एलोट्रॉप है वो स्टेबल नहीं है, बट सबसे ज्यादा स्टेबल है रोहम्बिक सल्फर। बाकी सारे एलोट्रॉप कन्वर्ट होकर रोहम्बिक सल्फर में आ जाते हैं। तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म इज रोहम्बिक सल्फर। इट एग्जिस्ट इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ठीक है, एमॉर्फस नहीं है, क्रिस्टलाइन है, एंड इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। सल्फर वाटर में सॉल्युबल नहीं होती, एंड इट इज सॉल्युबल इन CH2। ये सारे पॉइंट्स माइंड में रखने हैं कि जो रोहम्बिक सल्फर है वो कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होती है पर वाटर में सॉल्युबल नहीं होती, और ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। हम यहाँ लिख भी दें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट स्टेबल फॉर्म
Most stable allotrope of sulfur is the rhombic sulfur. You can call it alpha sulfur. Rhombic sulfur, right? फिर कुछ पॉइंट्स हमें दिए हैं मोनोक्लिनिक सल्फर के बारे में. ये नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स होते हैं, ये भी क्रिस्टल्स हैं. दिस इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स बट नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स, और ये भी सॉल्यूबल है CS2 में. और इट इज नॉट स्टेबल एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड इट चेंजेस टू रोम्बिक सल्फर ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग. ज्यादा देर के लिए रख दो तो ये अपने आप से किस में कन्वर्ट हो जाती है, रोम्बिक सल्फर में. मोनोक्लिनिक सल्फर रोम्बिक में कन्वर्ट होगी तो उस टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं. जब एक एलोट्रॉप दूसरे एलोट्रॉप में कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर का नाम बेटा ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है. नेक्स्ट आता है प्लास्टिक सल्फर. दिस इज अनदर एलोट्रॉप. प्लास्टिक के नाम से ही पता चल रहा है कि ये एमॉर्फस होगा. इफ बॉइलिंग सल्फर इज पास्ड इनटू वाटर इट सॉलिडिफाइज इनटू अ रबर लाइक सब्सटेंस. ठीक है, प्लास्टिक सल्फर कैसे बनेगा, आप बॉइलिंग सल्फर को वाटर में पास करोगे तो एक रबर जैसा सब्सटेंस बन जाता है जिसको प्लास्टिक सल्फर कहते हैं. ये CS2 में सॉल्युबल नहीं है. पहले वाले दोनों एलोट्रॉप CS2 में सॉल्युबल थे. कौन कौन से, रोम्बिक भी मोनोक्लिनिक भी, वो वाटर में इनसॉल्युबल थे बट कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल थे. प्लास्टिक सल्फर इनसॉल्युबल होती है एंड क्योंकि अमॉर्फस सॉलिड होगा तो कभी भी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता. वही लिखा है प्लास्टिक सल्फर डज नॉट हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट. गॉट इट. सो ऑल द पॉइंट्स शुड बी क्लियर अबाउट दीज एलोट्रॉप्स. फिर आप आगे देखो नेक्स्ट हमें क्या क्या गिवन है. ऑप्शंस पढ़ते हैं. एक दिया था रोम्बिक सल्फर, एक दिया है प्लास्टिक सल्फर, मिल्क ऑफ सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर. मिल्क ऑफ सल्फर क्या होता है कि हम सबलाइम्ड सल्फर को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब स्लेक लाइम से मिक्स कर देते हैं. सबलाइम्ड सल्फर मिक्स्ड विद स्लेक लाइम विल convert into milk of sulfur. I can mention here you have got sublimed sulfur and then it is mixed with slake lime. Slake lime होता है calcium hydroxide followed by water. This suspension will be called as milk of sulfur. Got it? So आपके पास आंसर बनता है प्लास्टिक सल्फर एमॉर्फस है. प्लास्टिक के नाम से भी गैस हो जाता है कि ये एमॉर्फस फॉर्म ऑफ सल्फर है. वेरियस एलोट्रॉप्स में रोम्बिक मोस्ट स्टेबल, बाकी सारे कन्वर्ट हो जाते हैं और प्लास्टिक भी स्टेबल नहीं है. प्लास्टिक वाला शार्प मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं रहेगा प्लास्टिक सल्फर का एंड सॉल्युबल भी नहीं है वाटर में और कार्बन डाइसल्फाइड में. सो एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर के अंदर. उनका रिलेटिव कंपैरिजन आपने देखा. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिसोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन वाटर प्रोड्यूसेस. अगर सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या बनता है. सल्फर डाइऑक्साइड इज टू बी डिसॉल्व्ड इनटू वाटर. देखो सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर को जब हम मिक्स करते हैं ना बेटा तो ये बनता है सल्फ्यूरस एसिड H2SO3. इट इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरस एसिड. जो भी एसिड होता है और उसका एनहाइड्राइड होता है उनका ऑक्सीडेशन नंबर सेम होता है. आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो. सल्फर का यहां +4 आएगा और H2SO3 के अंदर भी +4 आएगा. ठीक है. सो एसिड कौन सा है, सल्फ्यूरस एसिड, और उसका एनहाइड्राइड कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड. एनहाइड्राइड मतलब एसिड माइनस वाटर कर दो, जो भी बचेगा उसको क्या कहते हैं, एनहाइड्राइड. हमने सल्फर डाइऑक्साइड में वाटर डाला तो सल्फ्यूरस एसिड बन गया. अगर सल्फ्यूरस एसिड में से वाटर निकाल दिया जाए सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी. सो एसिड जो होता है, एसिड एंड इट्स एनहाइड्राइड, acid and its anhydride, they both have same oxidation number. इनका ऑक्सीडेशन नंबर सेम होता है. ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है. जिस तरीके से अगर क्वेश्चन में सल्फर डाइऑक्साइड दिया, अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड दे दिया जाए तो सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस वाटर को मिक्स करने से भी एक एसिड बनता है. उसका नाम है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड.
यू कैन चेक थ्रू द ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे बेटा +6 और यहाँ पे भी +6 आएगी, ठीक है। तो एसिड का अपने एनहाइड्राइड के साथ आपको ऑक्सीडेशन स्टेट वेरीफाई करके भी आंसर मिल जाएगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड किसका एनहाइड्राइड है? सल्फ्यूरिक एसिड का। और सल्फ्यूरस एसिड का एनहाइड्राइड है सल्फर डाइऑक्साइड। सो हमारी ऑप्शंस में H2SO3 दिया है ना, H2SO3 मीन्स डी ऑप्शन इज द आंसर। डिसोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये बनेगा सल्फ्यूरस एसिड। Coming to the next question, question number 13. You are given there is no sulfur-sulfur bond in S2O6 2 negative, S2O7 2 negative, S2O3 2 negative और none of these. तो देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें कुछ एसिड्स के बारे में पता होना चाहिए। आपको एक टेबल दिया है, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इनके नाम याद रखने हैं सबसे पहले। सल्फ्यूरस एसिड इज H2SO3 और सल्फ्यूरिक एसिड तो पता ही है H2SO4। एक बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है H2S2O3। H2SO3 इज कॉल्ड एज थायोसल्फ्यूरिक एसिड। इस नाम से क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला हमें खुद लिखना पड़ता है। ये सारे एसिड्स, इनके स्ट्रक्चर, इनके ऑक्सीडेशन नंबर, इनकी बेसिसिटी, ये हमारे सिलेबस के अंदर मेन पॉइंट्स हैं। डाइथायोनिक एसिड इज द नेम फॉर H2S2O6। डाइथायोनिक एसिड, ये सारे सल्फर के ऑक्सो एसिड्स हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। H2S2O7 का नाम बेटा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। फिर आता है H2SO5। H2SO5 है पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। देन यू आर गिवन H2S2O8, ये क्या है? पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ये जो नेम है ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर तो हम सिंपल कैलकुलेट करेंगे X लेके। बेसिसिटी कैसे आएगी? किसी का बेसिसिटी 2, किसी का 1, वो कैसे डिसाइड होता है? यहाँ तो सबका ही 2 है, तो देखते हैं बेसिसिटी कैसे डिसाइड होता है। उसके लिए स्ट्रक्चर चाहिए। वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर ऑल ऑफ देम। फर्स्ट इज H2SO3। पहले इनको हम ड्रॉ करते हैं, सारे स्ट्रक्चर्स को लर्न करते हैं, फिर अपने क्वेश्चन की ऑप्शंस पे आएंगे। यू आर गिवन सल्फर एंड 1 ऑक्सीजन इज अटैच्ड थ्रू डबल बॉन्ड, अदर 2 आर OH, टोटल 3 ऑक्सीजन थी और एक लोन पेयर। इस तरह H2SO3 तो डाई बेसिक हो गया। ये डाई बेसिक क्यों है? क्योंकि ये 2H लूज करेगा। जो भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अटैच्ड होती है वो एसिडिक हाइड्रोजन होती है, वो रिमूव हो सकती है। सेकेंड नंबर पे दिया है, नंबर 1 वॉज सल्फ्यूरस, नंबर 2 इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बेटा H2SO4। H2SO4 मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, सेंट्रल एटम सल्फर, we have oxygens attached through double bonds and then OH groups are also attached. ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, ये भी 2H लूज करेगा क्योंकि दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे लगी हैं तो वो एसिडिक हाइड्रोजन हो जाती है। इट इज ऑल्सो डाई बेसिक। एसिडिक हाइड्रोजन मतलब द हाइड्रोजन विच इज रिप्लेसेबल, विच कैन बी रिमूव्ड आउट। तीसरे नंबर पे टेबल में दिया था थायोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O3. This is called as thiiosulfuric acid. तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड के लिए हम क्या करेंगे? सल्फर और सल्फर के बीच में यहां बॉन्ड होता है। 1 सल्फर इज अटैच टू अनदर सल्फर थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब एक सल्फर अपना लोन पेयर दूसरी सल्फर को दे रही है। एक डोनर सल्फर है, एक एक्सेप्टर सल्फर है और बाकी तो ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड के साथ। एंड देन OH ग्रुप्स आर देयर। टोटल आपने 3 ऑक्सीजन लिखनी थी और टोटल 2 सल्फर थे आपके पास। सो ये स्ट्रक्चर है थायोसल्फ्यूरिक एसिड का। नंबर 4 टेबल में क्या दिया है? डाइथायोनिक एसिड। नंबर 4 है H2S2O6। पहले सबके स्ट्रक्चर्स आप लर्न करिए। डाइथायोनिक एसिड इज द नेम। H2S2O6 का नाम है डाइथायोनिक एसिड। सल्फर, सल्फर बेटा डायरेक्ट बॉन्ड है, 2 सल्फर है यहां, दोनों का टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। एंड वी हैव टोटल 6 ऑक्सीजन। OH विल बी अटैच्ड and
you will have double bond oxygen. Total count करिए 6 oxygen हो गई and we have 4 hydrogens. H2S2O6. Hydrogens are also 2. ठीक है, तो मैंने तो गलती से 4 हाइड्रोजन कर दिया, हम इसको 2 बनाएंगे. 2 हाइड्रोजन है ना कि 4, तो आपके पास स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा. ऑक्सीजन 6 थे और हाइड्रोजन 2 थे. अब मैंने कितने ऑक्सीजन बना रखे हैं? 2, 1 2 3, 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, 6 ऑक्सीजन्स एंड वी हैव 2 हाइड्रोजन्स, 2 सल्फर. एज अ रिजल्ट ये भी डाई बेसिक है. दिस इज ऑल्सो डाई बेसिक. कैसे देखते हैं? जब जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अटैच्ड होगी तभी हाइड्रोजन बाहर आएगी, तो वो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है. डाइथायोनिक एसिड के बाद पायरोसल्फ्यूरिक एसिड. ऑल दीज ऑक्सो एसिड्स आर इंपॉर्टेंट. पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ये बेटा सल्फ्यूरिक एसिड प्रेपरेशन के अंडर ये बनता भी है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड. उसके ऊपर भी क्वेश्चन मिलेगा आपको. H2S2O7 is called pyrosulfuric acid. जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो इसमें याद रखने का बात क्या है, इसमें सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में भी बॉन्ड होता है. SOS is there. So we have the structure of H2S2O7. So we have sulfur, oxygen and then sulfur, SOS is there. After that hydrogens are to be adjusted. So SOS and then we have H2S2O7 means OH will be attached. Total 2 hydrogens and 7 oxygens we are having. You can count. I have written total 5 till now. This is 6th and this is 7th. So H2S2O7 pyrosulfuric acid. इसमें सल्फर सल्फर डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, इसके अंदर क्या है? SOS बॉन्ड. And in the table next one is परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड. अच्छा, अभी एक और भी रहता है, परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, फिर डाइसल्फ्यूरिक एसिड, दोनों ड्रॉ करेंगे. नंबर 6 इज परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड. दिस इज H2SO5. एक ही सल्फर है, तो बेटा इसमें नेम के अंदर परऑक्सी क्यों आ रहा है वो देखो. इसमें परऑक्साइड लिंकेज है. ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड को परऑक्साइड बॉन्ड कहा जाता है. 1 2 3 4 एंड 5 ऑक्सीजन्स. दिस इज द परऑक्साइड लिंकेज. परऑक्साइड बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड को परऑक्साइड बॉन्ड कहते हैं, वो याद रखना है. सो नेम इज परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड. Next in the table is peroxy disulfuric acid which is H2S2O8. H2S2O8 को मार्शल एसिड भी बोला जाता है. peroxy disulfuric acid is the technical name. And we have sulfurs, 2 sulfurs here. As a result, सल्फर सल्फर के बीच में आप पेरोक्साइड बॉन्ड बना दोगे. ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड को पेरोक्साइड बॉन्ड कहते हैं. एंड देन वी हैव ऑक्सीजन्स विद डबल बॉन्ड एंड देयर आर 2 OH. सो ऑल ऑफ देम आर डाई बेसिक. सबके अंदर 2 हाइड्रोजन लूज होंगे और ये पेरोक्साइड लिंकेज है. ये वाला, ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, दिस इज द पेरोक्साइड बॉन्ड. ठीक है, तो सबके स्ट्रक्चर्स, उनकी बेसिसिटी, उनके ऑक्सीडेशन नंबर, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं. अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे. देयर इज नो सल्फर सल्फर बॉन्ड इन H2S2O6 2 नेगेटिव. हमें एसिड की जगह उनके आयन दिए. ये देखो, दिस इज H2S2O6. ठीक है, अगर हमें इसके आयन का स्ट्रक्चर बनाना है तो वो बन जाएगा, हाइड्रोजन्स हटा दो, S2O6 2 नेगेटिव. तो कैन आई से देयर इज ए सल्फर सल्फर डायरेक्ट बॉन्ड. सल्फर सल्फर डायरेक्ट बॉन्ड इज प्रेजेंट. हमें क्या ढूंढना था? हमें ढूंढना था विच इज हैविंग नो सल्फर सल्फर बॉन्ड.
तो ए ऑप्शन तो आंसर नहीं है, बी ऑप्शन बनेगा आंसर। सी के अंदर भी H2O3 दिया है, दिस इज H2O3, this one H2S2O3 is given to us. Can you see the direct sulfur sulfur bond, direct bond between sulfur atoms? तो ये भी आंसर नहीं बना। एक ऑप्शन है H2S2O7, तो ये है H2S2O7, नो डायरेक्ट लिंकेज। वी हैव सल्फर ऑक्सीजन एंड सल्फर लिंकेज, SOS बॉन्ड है, सल्फर सल्फर डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, तो आंसर बनता है बी ऑप्शन। आपको ये चाहिए था ना, विच हैज नो सल्फर सल्फर डायरेक्ट बॉन्ड, बी ऑप्शन इज द आंसर। गॉट इट? सो ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके कभी बेसिसिटी पे क्वेश्चन आता है, कभी स्ट्रक्चर में से कोई पॉइंट पूछेंगे, उनका नेम पूछ सकते हैं, सबको ठीक से लर्न करना है। Coming to the next question, again on sulfur dioxide. Question is sulfur dioxide plus H2S, what is the product? Final product is to be identified. What is the reaction? Sulfur dioxide को बेटा H2S के साथ मिक्स करना है, तो ये रिएक्शन बनता है। I will write the reaction sulfur dioxide plus H2S, ये प्रोडक्ट आ जाएगा सल्फर प्लस वाटर। सल्फर डाइऑक्साइड दोनों की तरह एक्ट करती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट भी। सल्फर डाइऑक्साइड ने यहाँ सल्फाइड आयन को सल्फर में कन्वर्ट कर दिया, H2S में सल्फाइड आयन प्रेजेंट था, सल्फाइड आयन हैज बीन कन्वर्टेड टू सल्फर। सो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, तो हमारा आंसर बन रहा है ए ऑप्शन। सल्फर डाइऑक्साइड के और भी रिएक्शंस हम डिस्कस कर सकते हैं। देखो सल्फर डाइऑक्साइड क्या क्या रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व है, दोनों की तरह एक्ट करना है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट भी। तो जब आप इसको आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराओगे, किसी भी मेटल के साथ, मेटल प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, द प्रोडक्ट विल बी ऑक्साइड ऑफ मेटल MgO प्लस MgS। And similarly we have potassium, this is MgS। तो मैग्नीशियम का चेंज देखो, पहले मैग्नीशियम 0 से +2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, 0 से +2 मतलब मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, वो सल्फर ने खुद ले लिए, सल्फर +4 था और सल्फर -2 बन गया। सल्फर हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नीशियम हैज लॉस्ट द इलेक्ट्रॉन। इसी तरह पोटेशियम के साथ, आयरन के साथ रिएक्शन हो सकता है। इफ आई हैव आयरन प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, यू विल गेट FeO एंड FeS, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे भी चेंज देख लो, 0 से +2 में चेंज हो रही है मेटल, और सल्फर +4 से -2 के अंदर। सल्फर डाइऑक्साइड इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, जो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। सल्फर डाइऑक्साइड इटसेल्फ गेटिंग रेड्यूस्ड, जो खुद रेड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन बेटा क्लोरीन के साथ जब होता है तो ये बन जाता है सल्फ्यूराइल क्लोराइड, SO2Cl2। यहाँ पे सल्फर +4 था, अब ये +4 से +6 हो गया, सल्फर हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, सल्फर इटसेल्फ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। तो अलग अलग बिहेवियर होते हैं, रिएक्शन को आप ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से देख सकते हो। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्लोरीन 0 से -1 में चेंज हो गया। क्लोरीन ने जब इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कहाँ से आया वो इलेक्ट्रॉन, वो सल्फर से आया। तो अल्कली मेटल ले सकते हैं, सोडियम पोटेशियम, अल्कलाइन अर्थ मेटल, मैग्नीशियम लिया हमने, कैल्शियम ले सकते हैं, ऐसे आयरन है। तो अलग अलग मेटल्स के साथ इसका रिएक्शन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करेगी, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद रिड्यूस होना पड़ेगा एंड वाइस वर्सा। गॉट इट? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Ozone turns benzidine paper brown. It is dry. It is called dry bleach. It is tested by tailing of mercury, and on reaction with Ki it gives Hi. टेलिंग ऑफ मर्करी का ओजोन का रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। ओजोन को क्या ड्राई ब्लीच कहते हैं? क्या ये बेंजीडाइन पेपर को ब्राउन करती है? तो पहले हम ऑप्शन से पहले अपना ये टेस्ट पढ़ते हैं। नोट में लिखा है टेस्ट्स ऑफ ओजोन।
फर्स्ट है मर्करी लूजेज इट्स मेनिस्कस इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन। ये तो पीछे क्वेश्चन भी आ गया था ना, मर्करी का रिएक्शन होता है तो मर्करी का मेनिस्कस लूज हो जाता है क्योंकि ओजोन के साथ रिएक्ट करके वो Hg2O बन जाता है विच इज कॉल्ड मर्क्यूरस ऑक्साइड। वो इस चैप्टर का मेन पॉइंट था। उसके बाद इट टर्न्स स्टार्च आयोडाइड पेपर ब्लू इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन। ओजोन और स्टार्च आयोडाइड पेपर को अगर हम मिक्स करेंगे तो वो आयोडीन लिबरेट हो जाती है क्योंकि ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आयोडाइड से जब आयोडीन निकलेगी तो फिर ये आयोडीन और स्टार्च के साथ ब्लू कलर दिखेगा। यहाँ मेंशन है, टेस्ट में याद रखना है। सिल्वर फॉयल टर्न्स ब्लैक इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन। ओजोन का बेटा अगर सिल्वर फॉयल के साथ रिएक्शन होता है तो Ag2O बनेगी। सिल्वर तो Ag है, प्रोडक्ट में Ag2O आ जाएगा। एंड बेंजीडाइन पेपर को भी ये it turns brown in presence of ozone। so देखो रिएक्शंस में हम कुछ कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं इस टेबल के थ्रू। मर्करी का तो पहले से भी हो गया था, मर्करी प्लस ओजोन से बन जाता है Hg2O एंड नेसेंट ऑक्सीजन इज लिबरेटेड। आफ्टर दैट स्टार्च आयोडाइड पेपर ब्लू, सिल्वर फॉयल टर्न्स ब्लैक। ये है Ag सिल्वर फॉयल, जब ओजोन से ट्रीट करेंगे तो Ag2O आएगा प्लस O2 आएगा, राइट। बेंजीडाइन पेपर को ये ब्राउन कर देता है। बेंजीडाइन ये स्ट्रक्चर होता है, ये टेस्ट है ओजोन का। यू आर गिवन दिस स्ट्रक्चर NH2 अटैच्ड ऑन द बोथ पैरा पोजिशंस, दिस इज कॉल्ड एज बेंजीडाइन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो बेंजीडाइन के साथ अगर ओजोन का रिएक्शन होता है तो वो भी कलर चेंज शो करता है, वो पेपर ब्राउन हो जाता है। ड्राई ब्लीच कहते हैं। ओजोन इज अ ब्लीचिंग एजेंट बिकॉज ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। इट इज ए ब्लीचिंग एजेंट बिकॉज ऑफ लिबरेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। ओजोन में से O2 निकलता है और नेसेंट ऑक्सीजन निकलती है। क्लियर। तो स्टार्च आयोडाइड पेपर के अंदर भी वही रिएक्शन होना है कि ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो ऑक्सीडाइज कर देती है, एज अ रिजल्ट हमें कलर चेंज दिखता है। तो याद रखिए जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो ब्लीच के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कोई भी कलर्ड सब्सटेंस हमारे पास है, अगर colored material is available to us, when it will react with nascent oxygen it will become colorless। so removal of color का जो property है उसको bleach कहते हैं, bleaching action कहते हैं। as a result अब हम आंसर देखते हैं। it turns benzene paper brown, it is called dry bleach, that is correct। dry condition में ये bleach करती है, water ऐड नहीं किया जाता। इट इज टेस्टेड बाय टेलिंग ऑफ मर्करी, दैट इज करेक्ट। ऑन रिएक्शन विद KI सोल्यूशन इट गिव्स HI, दैट इज नॉट करेक्ट। सो ये कोई रिएक्शन नहीं है KI का ओजोन के साथ। आपका आंसर बनेगा 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, मीन्स ए ऑप्शन इज द आंसर। तो ओजोन के टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ओजोन की ऑक्सीडाइजिंग नेचर के रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। ओजोन क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करता है इसलिए ओजोन एक अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है। गॉट इट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 इज वन गैस ब्लीचेस द कलर ऑफ फ्लावर्स बाय रिडक्शन एंड द अदर बाय ऑक्सीडेशन, द टू गैसेस आर। कौन कौन सी गैस ब्लीच करती है? एक रिडक्शन के थ्रू फ्लावर्स का कलर और एक ऑक्सीडेशन के थ्रू। ठीक है, कोई दो ब्लीचिंग एजेंट हमें ढूंढने हैं, एक कर रहा है थ्रू रिडक्शन, एक कर रहा है थ्रू ऑक्सीडेशन। तो बेटा सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है, सल्फर डाइऑक्साइड ब्लीचेस बिकॉज ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, ये याद रखना है। नेसेंट हाइड्रोजन की वजह से ये ब्लीच करता है। क्लियर। तो आपके पास वाटर की प्रेजेंस होनी चाहिए, वाटर होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर के प्रेजेंस में नेसेंट हाइड्रोजन निकलेगी। वो जो नेसेंट हाइड्रोजन है वो कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस बनाती है। colored material will change to colorless because of this nascent hydrogen. Colored matter or colored material will become colorless। बट याद रखो कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसका ब्लीचिंग एक्शन टेम्परेरी होता है, इसका टेम्परेरी रिएक्शन है ब्लीचिंग एक्शन।
तो हमारे पास थ्रू रिडक्शन वाला आंसर तो आ गया कि सल्फर डाइऑक्साइड है। अब थ्रू ऑक्सीडेशन कौन है, वो बेटा क्लोरीन होती है। ये पहले रिएक्शन कंप्लीट कर लो, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर से बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी नॉट सल्फ्यूरिक, H2SO3, sulfurous acid, H2SO3, and you will have this way sulfur dioxide as reducing agent and bleaching agent because of nascent hydrogen। दूसरी बात ये बताई, सल्फर डाइऑक्साइड अगर वाटर ना हो तो फिर ब्लीचिंग एजेंट नहीं होती, क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में ही इसने नेसेंट हाइड्रोजन लिबरेट करनी है। अब बात आती है ऑप्शंस में, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन के ऊपर आते हैं। क्लोरीन बेटा एक बहुत ही फेमस ब्लीचिंग एजेंट है, बट क्लोरीन कैसे ब्लीच करता है, क्लोरीन को जब आप वाटर से मिक्स करते हो, रिएक्शन बहुत अच्छे से हर स्टूडेंट ने लर्न करना है, ये लिखने के लिए आपको परफेक्टली आना चाहिए। क्लोरीन प्लस वाटर से बनता है HCl प्लस HClO। ये जो HClO है इसको हाइपोक्लोरस एसिड कहते हैं। ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, ये डीकम्पोज हो जाता है, डीकम्पोज होगा तो नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगी। तो नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से क्लोरीन एक अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है, और नेसेंट हाइड्रोजन की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड भी ब्लीचिंग एजेंट है। अब हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करते हैं। रिएक्शन आपने लिखना है कि कैसे लिखा जाता है, आपने सीखना है। सो क्लोरीन प्लस वाटर विल गिव 2 मोल ऑफ HCl, एंड HClO तो कैंसल आउट हो जाएगा ना, लेफ्ट पे भी HClO है और राइट पे भी है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास ऑक्सीजन निकल रही है, नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से जो क्लोरीन है वो एक अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है, और नेसेंट हाइड्रोजन की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड है। आपका आंसर बन रहा है सी ऑप्शन। बी केयरफुल, ए ऑप्शन में भी वही दो दिए हैं, क्लोरीन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, बट यहाँ रिस्पेक्टिवली लिखा है। रिस्पेक्टिवली का मतलब पहले रिडक्शन का आंसर देना है, बाद में ऑक्सीडेशन का आंसर देना है। सो द आंसर इज सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कौन कौन सी गैसेस लाइम वाटर मिल्की बना देती हैं? ऑप्शंस आर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और बोथ ऑफ देम। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का तो हमें पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर ये होता है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम कार्बोनेट आ जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से मिल्कीनेस होती है, ये हम जानते हैं। बट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हमारे इस ग्रुप में, ऑक्सीजन फैमिली में, सल्फर डाइऑक्साइड भी एक बहुत अच्छा रिएक्शन देता है विद लाइम। स्लेक लाइम है ये, लाइम वाटर है ये। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वाटर के साथ सस्पेंशन बना दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज सल्फर डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम सल्फाइट बनेगा। क्या प्रोडक्ट आया? कैल्शियम सल्फाइट प्लस वाटर। ये जो कैल्शियम सल्फाइट है इसकी वजह से मिल्कीनेस आएगी। मिल्कीनेस इज देयर बिकॉज ऑफ कैल्शियम सल्फाइट। इंपॉर्टेंट बात थी, और याद रखना है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है इसकी तो पंजेंट स्मेल है, पंजेंट स्मेलिंग गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की कोई स्मेल नहीं है, इट इज एन ऑर्डरलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस गैस। सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है बट विद अ पंजेंट स्मेल। और कीप इन माइंड द नेक्स्ट पॉइंट, सल्फर डाइऑक्साइड ने मिल्कीनेस दे दिया, किसकी वजह से दिया? कैल्शियम सल्फाइड। वो कंपाउंड का नाम याद रखना है, हमें डायरेक्ट पूछा जाता है कि मिल्कीनेस किसकी वजह से आई। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस मिल्कीनेस विल डिसअपियर इफ सम एक्सेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज देयर। मिल्कीनेस disappears in excess of sulfur dioxide। अगर सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा अमाउंट में है तो फिर मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। कैल्शियम सल्फाइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये अगर प्रेजेंट हो तो ये प्रोडक्ट आ जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड। कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड बोलो या कैल्शियम बाइसल्फाइड बोलो, इसकी वजह से मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। वी कैन मेंशन हेयर मिल्कीनेस डिसअपियर। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे क्वेश्चन में कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से मिल्कीनेस नहीं आती है, सल्फर डाइऑक्साइड से भी आती है, और आंसर बनता है सी ऑप्शन। बोथ ऑफ देम आर टर्निंग लाइम वाटर मिल्की। गॉट इट?
कैल्शियम ऑक्साइड को बेटा क्विक लाइम कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक लाइम कहते हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पर ऑक्सी लिंकेज। क्या क्या ढूंढना है हमें? पर ऑक्सी लिंकेज। कुछ एसिड्स के नाम दिए हैं, अभी अभी स्ट्रक्चर भी बनाए थे प्रीवियस क्वेश्चन में। वी आर गिवन H2S2O3 एंड H2SO5, H2S2O8, H2S2O7। पर ऑक्सी लिंकेज किस किस के अंदर प्रेजेंट है? सबके स्ट्रक्चर दोबारा से बनाएंगे। H2S2O3 थायोसल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम है, इसमें सल्फर सल्फर डायरेक्ट बॉन्ड है, एंड देन यू हैव ऑक्सीजन अटैच्ड थ्रू अ डबल बॉन्ड एंड OH ग्रुप्स आर अटैच्ड, OH। एज अ रिजल्ट ये OH हुआ, लेफ्ट पे एक OH, राइट पे 2 सल्फर, 3 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। तो इसमें तो कोई भी पर ऑक्सी बॉन्ड नहीं आया। पर ऑक्सी लिंकेज किसको कहते हैं? पर ऑक्सी लिंकेज क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड को पर ऑक्सी लिंकेज कहते हैं। अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड आ गया तो आंसर बन जाएगा। तो फर्स्ट में तो नहीं आया। सेकंड इज H2SO5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कैरोज एसिड के नाम से भी जाना जाता है, कभी कभी इस नाम से क्वेश्चन आता है। इसका एक और नाम पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। बोथ द नेम्स एंड द फॉर्मूला शुड बी नोन टू अस। एनसीईआरटी के अंदर लास्ट पेज में, ऑक्सीजन ग्रुप के अंदर लास्ट पेज पे ये स्ट्रक्चर दिए हुए। सो स्ट्रक्चर ये देखो, सल्फर, वैसे ये जो H2SO5 है सल्फ्यूरिक एसिड से मैच करेगा स्ट्रक्चर, बट आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है। सल्फ्यूरिक एसिड तो H2SO4 होता है, तो यहां बेटा O 2 बारी लिखना है। ये परऑक्साइड लिंकेज है, काउंट कर लो 1 2 3 4 एंड 5 ऑक्सीजन। दिस इज द परऑक्साइड लिंकेज। पर ऑक्सी बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड को परऑक्साइड बॉन्ड कहते हैं। हमने 2 स्ट्रक्चर बनाए हैं। थर्ड वन इज H2S2O8। H2S2O8 मार्शल एसिड होता है, और मार्शल एसिड के साथ साथ इसका नाम ये भी याद रखना है, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रक्चर में आपको दोनों सल्फर टेट्राहेड्रली अरेंज करने हैं, बट सेंटर में एक परऑक्साइड बॉन्ड आएगा। दिस इज द परऑक्साइड लिंकेज। पर ऑक्सी लिंकेज इज प्रेजेंट। लास्ट ऑप्शन हमारे पास फोर्थ दी है H2SO7। H2S2O7 नंबर 4 पे। H2S2O7 इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इसमें परऑक्सी बॉन्ड नहीं आएगा, इसमें सल्फर ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड है। OH देन सल्फर, डबल बॉन्ड O एंड सल्फर। यू कैन काउंट, ऑक्सीजन का नंबर 7 होना चाहिए। 3 on one side, 3 on other side and 1 in the center, total 7. No परऑक्साइड लिंकेज। सो परऑक्साइड लिंकेज हमारे क्वेश्चन नंबर 18 में कहां पे आ रही है? 2 and 3 में। 2 and 3 मीन्स बी ऑप्शन। कैरोज एसिड और मार्शल एसिड के अंदर परऑक्साइड बॉन्ड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट बात एक ये भी है बेटा कि H2SO5 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। अगर मुझे इसका, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये इस क्वेश्चन में नहीं पूछा, स्टिल यू शुड नो ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर सल्फर इन H2SO5। एवरी ऑक्सीजन पे आप -2 लोगे, पर परऑक्साइड वाली ऑक्सीजन पे -2 नहीं, -1 लेना है। ये इंपॉर्टेंट बात थी। ऐसा करने से अपने आप आपके पास x का वैल्यू 6 आएगा। आप वेरीफाई करिए, x विल बी 6 इन कैरोज एसिड, दैट इज इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लेते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपाउंड एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट? तो वो सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में हम काफी पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। इट विल बी एक्टिंग एज बोथ। याद ये रखना है, whenever an element is in the intermediate oxidation state। देखो सल्फर की वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से लेके +6 तक होती हैं। सल्फर -2 H2S में है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड में या सल्फ्यूरिक एसिड में ये बेटा +6 है ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड हमें दिया है,
सल्फर डाइऑक्साइड में तो सल्फर +4 है। तो जब जब एक एलिमेंट अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड में +4 है, तो +4 वाला नीचे भी जा सकता है -2 में भी, और ऊपर भी जा सकता है +6 में भी। So whenever an element is in the intermediate oxidation state, it can act as oxidizing agent as well as reducing agent. That is why आपके क्वेश्चन का आंसर बन रहा है ए ऑप्शन। बी ऑप्शन आंसर क्यों नहीं है? देखो बी ऑप्शन में दिया गया है सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड में बेटा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। +6 से ऊपर नहीं जा सकता। सल्फर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के सारे भी लूज करे तो +6 चार्ज आएगा, तो और ऊपर नहीं जा सकता। फर्दर इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी लॉस्ट। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड नीचे आ सकता है ऑक्सीडेशन नंबर में, पर ऊपर नहीं जा सकता। क्वेश्चन ने पूछा था दोनों काम कौन करेगा, आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। Al2O3 अलग है, वो एल्यूमिना तो एम्फोटेरिक होता है, वो एसिड से भी रिएक्ट करता है, बेस से भी रिएक्ट करता है, वो अलग बात है। यहां पूछा था ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों होने चाहिए। और डी ऑप्शन में भी क्रोमियम बेटा +6 दिया है ना, CrO3 मीन्स क्रोमियम +6। क्रोमियम का भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है। क्रोमियम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, आप देख सकते हो। क्रोमियम होता है 4s1 3d5। ये सारे के सारे भी अगर लूज हो जाएं तो +6 बनेगा, और हमारे को तो ऑलरेडी +6 दिया है CrO3 में। तो जब इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तभी दोनों काम होंगे। आपको ये आंसर करना था ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों। वो कब होगा? जब इंटरमीडिएट के अंदर है। तो सल्फर डाइऑक्साइड आंसर है, क्योंकि यहां सल्फर बेटा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन। Last question is, in the preparation of sulfuric acid, V2O5 is used in the reaction which is? सल्फ्यूरिक एसिड प्रेपरेशन में V2O5 कहाँ यूज होता है? A है सल्फर +O2 से सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। B में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। C में सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस वाटर से सल्फ्यूरिक एसिड आता है। हमें नोट में लिख के दिया गया है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, राइट? तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम स्टार्ट ऐसे करते हैं, सबसे पहले सल्फर को ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड हमारे रिएक्शन का इंटरमीडिएट नहीं है, इंटरमीडिएट है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इसको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, और यहां पे कैटालिस्ट यूज होता है V2O5, ये याद रखने की बात है। और फर्दर नेक्स्ट रिएक्शन में ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है इसको डायरेक्ट वाटर से अगर मिक्स कर दो तो फॉग क्रिएट हो जाती है वेसल में। तो उसको अवॉइड करने के लिए सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड से मिक्स किया जाता है। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड प्रेपरेशन में सल्फ्यूरिक एसिड खुद यूज हो रहा है, और पहले ये बनता है ओलियम, H2S2O7 ओलियम। इसी को बेटा पायरो सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। हमारे पिछले क्वेश्चन में ये आया भी था, H2S2O7 पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, और ओलियम इसका नाम है। इसको फिर वाटर से मिक्स करेंगे, देन यू विल गेट 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड प्रेपरेशन के 4 स्टेप्स हैं, और हमने V2O5 के स्टेप में यूज किया, हमने वहां पे यूज किया जहां हमने सल्फर डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया। यहां V2O5 डाला जाता है। एज ए रिजल्ट आपका आंसर बी ऑप्शन। गॉट इट? सो ये पूरा डिटेल फुल डिस्कशन था हमारा ऑक्सीजन ग्रुप के अंदर। आपने ऑक्सीजन के ऊपर क्वेश्चंस किए, O2 प्रेपरेशन पे, ओजोन के ऊपर, इवन सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर रिड्यूसिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर देखी। सल्फ्यूरिक एसिड प्रेपरेशन इंपॉर्टेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग और डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो ऐसे और क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। नेक्स्ट वीडियो हेलोजन्स के ऊपर होगा, हेलोजन्स प्लस नोबल गैसेस। बट जब हेलोजन नोबल गैसेस खत्म करने पे पी ब्लॉक खत्म होता है तो एक और वीडियो बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस का होगा। उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले वीडियो में नाइट्रोजन के क्वेश्चंस, ऑक्सीजन फैमिली के, हेलोजन के, नोबल गैसेस के सबके आएंगे। एंड दैट इज ऑल फॉर द लेक्चर. Before we meet in the next video, you please keep practicing and make sure you subscribe to this channel so that you can get more videos. That is all. Thank you and bye bye.